अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th का जो हमने यूनिट शुरू किया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसी को एक्सटेंड करेंगे, उन्हीं के मुतालिक पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर की जब हम बात करते हैं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, about the peculiar nature of the D block elements, about the different properties which D block elements display and which make them a special group of elements। उन properties के मुतालिक हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम उन्हीं properties को जो है एक एक करके elaborate करेंगे, एक एक करके elaborated in detailed manner we will study each individual property that these D block elements display, and we will study them under the heading trends in the physical and chemical properties of D block elements। Trend means variation, trend simply means variation। How does the different properties, physical properties, chemical properties, physical property की हम बात करेंगे, what happens to the atomic size, what happens to the atomic radius, what happens to the ionic radius, likewise we talk of the melting and boiling points, we talk of the density. These are all physical properties. When we talk of these physical properties, then how these physical properties vary when we move in the D block elements from left to right in the D block elements, from top to bottom in the D block elements. What happens to these different physical properties? Or we talk of the chemical reactivity, the oxidation states, the electrode potentials. What happens to those properties when we move inside this D block element or inside the periodic table in general, from left to right in the periodic table, from top to bottom in the periodic table? That is variation across the periods, variation down the groups, that we call as trends in the physical and chemical properties. So today we will be studying the trends in the physical and chemical properties of D block elements. We will start our study with the first property, with the first physical property of the elements in general, with the elements display, that is the atomic size or the atomic radius of the D block elements. What happens to the atomic size or atomic radius of the D block elements when we move from left to right in the D block, when we move from top to bottom in the D block? We'll be studying that. जब हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, वी डिफाइन इट एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम अप टू द पेरिफेरल शेल, आउटर मोस्ट शेल। डिस्टेंस, मसाफत कितनी है, दूरी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट शेल, ये कितनी डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ द एटम, या उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। Now different atoms, they have different atomic radii, because different atoms में nucleus में different number of protons होते हैं, different atoms में outside the nucleus different number of shells होते हैं, different number of electrons होते हैं। So different atoms, they have different these atomic radii, they may also have same atomic radius। वो same atomic radius भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे multiple factors जो है डिटरमाइन करते हैं what is the atomic radius, what is the ionic radius। सिंपली जब हम ionic और atomic radius की बात करते हैं, what happens to the atomic radius, what happens to the ionic radius when we move from left to right in the periodic table, when we move from top to bottom in the periodic table? आपने पढ़ा होगा the periodicity and the properties, the different physical and chemical properties, their variation in the periodic table। तो उसमें हम जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। और जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, क्या होता है एटॉमिक रेडियस को? व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, देन यू माइट हैव स्टडीड द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब हम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास होता है, पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक और द आयोनिक रेडियस, it goes on decreasing, it decreases while moving from left to right in the periodic table। And the reason for this decrease in the atomic radius is that effective nuclear charge, or simply the nuclear charge, it goes on increasing। nuclear charge जो है increase हो रही है from while moving from left to right in the periodic table। we have the periodic table over here, हमारे पास periodic table है। So if we look at what happens to the atomic radius while moving from left to right in the periodic table, while moving from top to bottom in the periodic table, we know that जब हम किसी भी particular period में from left to right move करते हैं in the periodic table, the electrons are added to the same shell या same subshell। electrons same shell में चले जाते हैं, means n remains constant, principal quantum number same रहता है। For example, we talk of lithium, its principal quantum number is 2, means it has 2 shells। और अगर हम इस पीरियड में एंड वाले एलिमेंट की भी बात करेंगे, नियॉन की भी बात करेंगे, तो उसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही रहता है,
मीन्स if we name them according to the Bohr's nomenclature as K and L shell, तो L shell में लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसी L shell में नियॉन में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. So the shell number remains constant, means the electrons are being continuously added to the same shell. इसी दूसरे shell में जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, but simultaneously with each element, जब हम एक एलिमेंट से with each succeeding element, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में मूव करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 2 हैं इन द फर्स्ट शेल और 1 इलेक्ट्रॉन है इन द सेकंड शेल. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द फर्स्ट शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेकंड शेल. और इसमें 4 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 3 प्रोटॉन्स हैं. मींस इस वाले में 2 शेल्स प्रेजेंट है. इफ वी टॉक ऑफ लिथियम, लिथियम की हम बात करेंगे, दिस इज द सेंट्रल न्यूक्लियस, देन इट हैज 1 शेल, देन इट हैज सेकंड शेल. यहाँ पे +3 चार्ज है, मींस 3 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट एंड दे आर पुलिंग दीज 2 शेल्स टुवर्ड्स द सेंटर. वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इन आउटर शेल्स को पुल कर रहा है टुवर्ड्स सेंटर. देन वी मूव ऑन टू बेरिलियम. जब हम बेरिलियम पर पहुंच जाते हैं उसमें एक और शेल ऐड नहीं होती है, बल्कि यही शेल रहती है, इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आ जाता है, बट यहाँ पे +3 की जगह +4 जो है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, +1 यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है. सो व्हाट हैपेंस, the effective pull on this outer electron cloud, it increases. So this electron cloud, it comes close to the nucleus. ये electron cloud न्यूक्लियस के नजदीक आ जाता है. जब ये न्यूक्लियस के नजदीक आ गया तो ये शेल जो है हम कहते हैं this shell gets contracted and atomic size it gets decreased. इसका atomic size जो है ये decrease होता है when we move from lithium to beryllium. So reason for this is increase in the nuclear charge and the electrons entering the same shell. Electrons इसी shell में जाते हैं और दूसरी जानिब जो है nuclear charge वो increase हो रही है. So when we move from lithium towards fluorine, लिथियम से फ्लोरीन जब हम जाते हैं तो लिथियम इस वाले पीरियड में सबसे बड़ा एटम होगा और फ्लोरीन इस वाले पीरियड में सबसे छोटा एटम होगा. इनर्ट केस को आप छोड़ दीजिए, वहां पे जो है एटॉमिक साइज बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे हम कोलन रेडियस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको आप छोड़ दीजिए. लिथियम it will be the largest atom in its period and fluorine it will be the smallest atom in its period. Likewise potassium की हम बात करेंगे, it will be the largest atom in its period और bromine जो है it will be the smallest atom in its period. So what we say that we say when we move from left to right in the periodic table atomic size goes on decreasing, and when we move from top to bottom in the periodic table that we study under the heading trend in the physical property down the group. What happens to a particular physical property while moving from top to bottom in the periodic table? तो top to bottom जब हम मूव करते हैं the atomic radius goes on increasing. क्यों increase होता है? क्योंकि जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है. मतलब उसका ये है कि अगर पहले वाले एलिमेंट में एक शेल है मीन्स k शेल n is equals 1, तो दूसरे वाले एलिमेंट में 2 शेल्स हैं मींस k and l shell means n is equal to 2. So with each succeeding element new shells are being added. नए शेल्स ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रही है बट नए शेल्स के ऐड होने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है. तो अगर हम लिथियम, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम की अगर हम या हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का एटम अगर इतना है, लिथियम का एटम इतना है, तो सीजियम का एटम इतना बड़ा होगा. सो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप in any particular vertical column, in any particular group in the periodic table, the atomic size must increase because new shells are being continuously added. नए shells add हो रहे हैं, so atomic size increase होना चाहिए. This is variation of the atomic size in the periodic table. अब हम देखेंगे इस एटॉमिक साइज को डी ब्लॉक में क्या होता है. क्या ये सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है जैसे बाकी ब्लॉक्स में फॉलो करता है, जैसे बाकी ग्रुप्स में फॉलो करता है, या डी ब्लॉक में इसमें कुछ वेरिएशन आ जाती है. जब हम मूव करते हैं फ्रॉम इन द डी ब्लॉक कहां से है, सिकेंडियम और यहाँ कॉपरनीशियम और सिकेंडियम, यहाँ से यहाँ तक ये 40 एलिमेंट्स जो है दे कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जब हम मूव करते हैं इन द डी ब्लॉक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, व्हाट हैपेंस, नॉर्मल ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज द एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग. एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और होना भी चाहिए डिक्रीज, बिकॉज
effective nuclear charge or nuclear charge is simply it goes on increasing. ये increase हो रही है, new shells are added to the same, new electrons are added to the same shell. Therefore, what should happen to the atomic radius? It must decrease. Atomic radius must decrease. Left to right in the D block, we are expecting that the atomic radius must decrease. Atomic radius decrease होना चाहिए. Say from scandium up to zinc. Scandium अपने जो period है, अपनी जो रो है जिसको हम बोलते हैं 3D सीरीज, इस सीरीज में स्कैंडियम होना चाहिए सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा एटम, और जिंक होना चाहिए सबसे छोटा एटम. कॉपर होना चाहिए जिंक से कंपैरेटिवली बड़ा. सो दिस ट्रेंड इज फॉलो टू सम एक्सटेंट. ये ट्रेंड तो फॉलो होता है टू सम एक्सटेंट, बट जैसे यहाँ पे बाकी ब्लॉक्स में वेरिएशन हमें दिखती है, हमें देखने को मिलती है, ऐसी वेरिएशन डी ब्लॉक में नहीं पाई जाती है. यहाँ पे क्या होता है, द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू टाइटेनियम टू वेनेडियम टू क्रोमियम. यहां से यहां जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस जो होता है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. स्कैंडियम बड़ा एटम है, फिर टाइटेनियम में एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन इसी डी सब शेल में चला जाता है, देयरफॉर इट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन स्कैंडियम. वेनेडियम टाइटेनियम से छोटा होता है, क्रोमियम का एटम वेनेडियम से छोटा होता है. बट जब हम यहां से आगे जाते हैं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये वेरिएशन बहुत कम होती है. डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज वेरी लेस compared to the rest of the blocks of the periodic table. यहाँ पे जो हम expect कर रहे थे that atomic radius must show a sharp decrease while moving from scandium to zinc, but it doesn't show a sharp decrease. It decreases up to middle, then it remains almost constant. और जब हम end की तरफ जाते हैं तो end पे ये फिर से increase होना शुरू हो जाता है. और ये मैंने यहाँ पे जो है रफली यहाँ पे इसका थोड़ा मेंशन करके रखा है. ये आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ट्रेंड को एक्सप्लेन करना आना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी. एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो स्कैंडियम का एटम है 162 पिकोमीटर्स. इट्स एटॉमिक रेडियस इज 162 पिकोमीटर्स. It goes on decreasing. It is 147 picometers for titanium, 134 for vanadium. क्रोमियम के लिए है 127. फिर मैग्नीज और क्रोमियम के बीच में आप देखिए वेरिएशन, यहां से यहां तक वेरिएशन बहुत ज्यादा है. यहां से यहां तक वेरिएशन है 47 to 162 to 147 picometers. Means variation is very high. Means at least 13-14 picometers की डिफरेंस है between this and this. यहां से यहां तक वेरिएशन स्लाइटली कम है, यहां से यहां तक वेरिएशन इससे कम हो जाती है, और यहां से यहां तक वेरिएशन है ओनली 1 पिकोमीटर. मींस डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक साइज ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज इज जस्ट 1 पिकोमीटर. फिर हम मैग्नीज से आगे मूव करते हैं तो मैग्नीज और आयरन का जो है एटॉमिक रेडियस इट इज सेम 126 पिकोमीटर्स, 126 पिकोमीटर्स. फिर हम यहां से मूव करते हैं इट इज जस्ट 125. मींस कोई शार्प डिक्रीज नहीं है. मींस 126 से 110 पिकोमीटर नहीं पहुंचा है, बट इट इज 125. मींस डिक्रीज बाय जस्ट 1 पिकोमीटर विच इज नेग्लिजिबली स्मॉल डिक्रीज. फिर यहां से यहां मूव करते हैं 124. कॉपर के लिए 124, और जब हम एंड की तरफ आते हैं इट इज 138 पिकोमीटर्स. तो पहले आपको वेरिएशन याद रखनी है. व्हाट हैपेंस टू द एटॉमिक रेडियस when we move from left to right in a particular transition series? The atomic radius goes on decreasing up to the middle, then it remains nearly constant, and towards the end it slightly increases. ये जो atomic radius है ये slightly increase होता है. अगर हम इसको ऐसे in the form of graph यहाँ पे plot करेंगे, so what is happening to the atomic radius? Atomic radius को क्या हो रहा है? If say for example this is atomic radius, इस डायरेक्शन में हम एटॉमिक रेडियस दिखाएंगे और इस डायरेक्शन में हम एटॉमिक नंबर दिखाएंगे. व्हाट इज हैपनिंग टू द एटॉमिक रेडियस? इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये स्लाइटली डिक्रीज होता है, फिर नियरली कांस्टेंट हो जाता है, और फिर एंड पे थोड़ा सा ये इंक्रीज दिखाता है. इट इज शोइंग अ स्लाइट इंक्रीज. फॉर एग्जांपल दिस इज आवर स्कैंडियम, देन वी हैव हियर टाइटेनियम, देन वी हैव हियर वेनेडियम, देन वी हैव हियर क्रोमियम, और यहाँ पे हमारा है मैग्नीज और आयरन, इनका नियरली सेम है. फिर यहाँ पे आ जाएगा कोबाल्ट जिसका 125 है. फिर निकल और कॉपर इनका नियरली कांस्टेंट रहता है. यहाँ से निकल और कॉपर इनका नियरली कांस्टेंट रहता है. फिर जिंक की तरफ थोड़ा सा ये इंक्रीज हो जाता है. सो व्हाट इज हैपनिंग टू द एटॉमिक रेडियस? इट फर्स्ट डिक्रीजेस, देन इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द मिडल ऑफ द सीरीज, देन इट शोज अ स्लाइट इंक्रीज. दिस इज वेरिएशन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और यही वेरिएशन हर एक सीरीज में पाई जाती है. ये 3D में भी पाई जाएगी, ये 4D में भी यही वेरिएशन होगी, 5D में भी और 6D में भी यही वेरिएशन होगी. जैसे हम 4D की बात करेंगे,
एटॉमिक रेडियस 180 पिकोमीटर, देन 160 20 पिकोमीटर्स की डिफरेंस है। यहां से यहां हम मूव करते हैं तो 14 पिकोमीटर्स की डिफरेंस है। यहां से यहां हम मूव करते हैं तो जस्ट 7 पिकोमीटर्स की डिफरेंस है। आप देखिए यहां से यहां तक डिफरेंस कितनी है, 20 पिकोमीटर्स फ्रॉम यट्रियम टू जिरकोनियम, फ्रॉम जिरकोनियम टू नियोबियम डिफरेंस इज just 14 picometers. From niobium to molybdenum, the difference is just 7 picometers. From molybdenum to technetium, the difference is just 3 picometers. इसी तरह से यहाँ हम मूव करते हैं technetium to ruthenium, the difference in the atomic size is 2 picometers. It remains same over here, यहाँ पे ये same रहती हैं और फिर यहाँ पे थोड़ा सा increase हो जाता है, means it is 134 to 137 picometers. It goes on increasing. फिर यहाँ से फिर से increase हो रहा है और end पे तो increase होना ही है, यहाँ पे 154 picometers है. So what is happening to the atomic radius when we move from left to right? It first decreases slightly, then remains almost constant in the middle, then towards the end it again increase. इसी तरह से जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, when we move down the group, वेरिएशन ट्रेंड आपको जनरल ट्रेंड पहले याद रखना है. जनरल ट्रेंड है एटॉमिक साइज मस्ट इंक्रीज while moving down the group because new shells are added. पहले दो सीरीज में ये ट्रेंड फॉलो होता है, मींस 162 पिकोमीटर्स, 3 is the principal quantum number. जब हम मूव करते हैं to the next series, principal quantum number is 4. So 3 to 4 atomic radius must increase and it is increasing. It is 162 picometers to 180 picometers, means it's getting increased by almost 18 picometers. ये यहाँ से यहाँ तक increase हो रहा है. फिर जब हम यट्रियम से लेंथनम मूव करते हैं, एटॉमिक रेडियस इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. इट इज जस्ट 7 पिकोमीटर्स. यहाँ पे तो थोड़ी सी डिफरेंस है, पर जब हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस है 160 पिकोमीटर्स, बट हैफनियम का एटॉमिक रेडियस है 158 पिकोमीटर्स. नियोबियम का एटॉमिक रेडियस है 146 पिकोमीटर्स. टेंटालम का एटॉमिक रेडियस है 146 पिकोमीटर्स. मींस सेम, कोई वेरिएशन नहीं है. एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई शेल ऐड होगी, एटॉमिक रेडियस मस्ट इंक्रीज अब्रप्टली, a sharp rise must be observed in the atomic radius, but no sharp rise is observed while moving from 4d to 5d or 5d to 6d. याद क्या रखना है आपको, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस मस्ट इंक्रीज बिकॉज न्यू शेल्स आर कंटिन्यूअसली एडेड. The trend is observed, regular or normal trend is observed while moving from 3D to 4D. 3D से 4D जब हम मूव करते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, बट while moving from 4D to 5D or 5D to 6D, the normal trend is not observed. नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, और रीजन इसके लिए क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. यहीं पे हम डिस्कस करेंगे कि रीजन इसके लिए क्या है. पहले आपको वेरिएशन याद रखनी है. While moving from left to right, atomic radius first decreases, then remains constant, then increases. While moving down the group, the atomic radius is expected to increase, but it increases from 3D to 4D, but onwards 4D to 5D or 5D to 6D, it remains nearly constant, or at times it may also decrease. ये decrease भी हो सकता है. अब हम इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे, हम रीजन देंगे why this trend is observed in case of these transition elements. रीजन हम इसके लिए क्या लिखेंगे, द रीजन इज, रीजन फर्स्ट, while moving from left to right in the periodic table, जब हम periodic table में या D block में left to right मूव करते हैं तो atomic radius is expected to decrease because new electrons are continuously added to the same D subshell, और एटॉमिक जो है न्यूक्लियर चार्ज वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है बाय 1 यूनिट. सो न्यूक्लियर चार्ज इज गेटिंग इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द सेम सबशेल, देयरफॉर एटम मस्ट कंट्रैक्ट, द एटॉमिक साइज मस्ट डिक्रीज. So the trend that is observed from scandium up to the chromium, it is logical trend. एक logical trend है, ये होना चाहिए decrease because nuclear charge is getting continuously increased. जब हम scandium की बात करते हैं, scandium, then we have titanium, then we have vanadium, then we have chromium. Scandium में 3d1 4s2 configuration है, then titanium में configuration है 3d2 4s2, vanadium में configuration है 3d3 4s2, then chromium में configuration है 3d4 या 3d5 4s1, then manganese में configuration है 3d5 4s2. This is the configuration. So what is happening?
इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कंटिन्यूअसली एडेड टू द सेम सबशेल, इसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बट साइमल्टेनियसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है बाय 1 यूनिट, देयरफॉर एटॉमिक साइज मस्ट डिक्रीज, और एटम जो है वो कंट्रैक्ट होना चाहिए, बट हाफ वे से आगे ये नॉर्मली कांस्टेंट क्यों रहता है, और शार्प डिक्रीज यहां से यहां ये क्यों नहीं दिखाता है? द रीजन फॉर दिस इज in D block it is not the ultimate shell which is getting filled up, but it is the penultimate shell which is getting filled up. D block में ultimate shell में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, but penultimate shell में इलेक्ट्रॉन जाता है, और penultimate shell में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से क्या होता है? An effect comes into picture, an effect comes into view that we call as the shielding effect or the screening effect. एक effect वजूद में आ जाता है जिसके मुतालिक आपने पढ़ा होगा, that is called as shielding effect or that is called as screening effect. Means what is happening, जब हम left to right move करते हैं in the transition series, तो अंदर वाली जो सबशेल है ये fill up हो रही है, that is 3D सबशेल, और ये न्यूक्लियस को जो है आउटर शेल उसको पुल करने से रोक रही है। मीन्स दिस इज द इंटरवेनिंग शेल, दिस इज डी सब शेल, ये मेरा हाथ जो है इट इज डी सब शेल, इससे बाहर यहां से है एस इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल दीज आर द एस इलेक्ट्रॉन्स, ये है डी सब शेल, और यहाँ है न्यूक्लियस। जब डी सब शेल खाली होती है तो न्यूक्लियस इन बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिवली अपनी तरफ पुल कर पाता है, इट कैन पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स मोर close to the nucleus. So what is happening, the atom contracts, atom का साइज कम होता है, बट जो इस डी सब शेल, बीच के डी सब शेल में, पेनल्टिमेट शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल अप होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज हैपनिंग, दीज इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पूल, ये न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से रोक रहा है, दैट वी कॉल एज शील्डिंग इफेक्ट और दैट वी कॉल एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स द इंटरवीनिंग डी इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं इंटरवीनिंग, विच कम, दिस इज आवर न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज द डी सब शेल एंड दिस इज हियर एस सब शेल, ये बाहर की शेल है, दैट इज एस सब शेल, मींस इट इज 4s सब शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज डी सब शेल, ये वाली सब शेल है 3D सब शेल। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को भी तो पुल करता है और इस बाहर वाले शेल को भी अपनी तरफ पुल करता है। जब हम मूव करते हैं अप टू द सेकंड एलिमेंट दैट इज टाइटेनियम, जब हम टाइटेनियम की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर प्रेजेंट, सो न्यूक्लियस इज स्टिल अट्रैक्टिंग द 4s सब शेल, ये 4s शेल को भी अट्रैक्ट करता है, इट इज अट्रैक्टिंग दिस सब शेल, but what is happening, these intervening electrons they are to some extent screening this nucleus from pulling this outermost shell, या अब इस outermost shell को न्यूक्लियस के नजदीक आने से थोड़ा सा रोक रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहे हैं, और जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है इसको ये वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंटर बैलेंस करते हैं, दे आर बैलेंसिंग द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। सो व्हाट इज हैपनिंग, जितना जितना इस अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, उतना ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करेंगे, शील्ड खड़ा करेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने में इफेक्टिवली कामयाब नहीं होगा, दैट वी कॉल ए स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डी ब्लॉक, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द डी ब्लॉक इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, besides the increased nuclear charge, another effect comes into picture that we call as screening effect, and this screening effect it works opposite to the increased nuclear charge, ये न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस करता है। न्यूक्लियर चार्ज का काम था एटम को कंट्रैक्ट करना, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम है एटम को रिलैक्स करना, एटम को बड़ा कर देना। अब इनमें से कौन सा पुल ताकतवर होगा वही डिसाइड करेगा कि एटम कंट्रैक्ट होगा या एटम रिलैक्स होगा। सिंस इन द when we move from स्कैंडियम अप टू क्रोमियम, स्कैंडियम से क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इसका इफेक्टिव पुल जो न्यूक्लियस का होता है वो इस शील्डिंग इफेक्ट से बहुत ज्यादा होता है, वो इस शील्डिंग इफेक्ट से कंपैरेटिवली मोर होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, एटम इज गेटिंग कंट्रैक्टेड एंड वी सी अ डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस व्हाइल मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम अप टू क्रोमियम। अगर इसका है 160 पिकोमीटर्स, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो एटॉमिक साइज है वो रह जाता है से 130 पिकोमीटर्स, इट रिमेन्स 130 पिकोमीटर, सो इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड बिकॉज द nuclear charge it is more than the shielding which is caused due to the intervening electrons present in the d subshell। but जब हम यहां से आगे मूव करते हैं तो ये intervening electrons के इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट
इस न्यूक्लियर पुल को रोक रहा है फ्रॉम अट्रैक्टिंग द आउटर इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल. अगर इसका है 126 पिकोमीटर्स तो यहाँ पे रह जाता है 125 पिकोमीटर्स. यहाँ से हम आगे मूव करते हैं फॉर एग्जांपल अप टू आयरन, तो यहाँ पे भी ये रह जाता है 125 पिकोमीटर्स. सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग a sharp decrease in the atomic radius, but it is not happening because of the screening effect, because of the shielding of the intervening d subshell, which shields the outer electrons from being pulled towards the nucleus. So एक reason आपको समझ में आ गया that while moving from left to right in the periodic table we are expecting a decrease in the atomic radius. This decrease is observed up to the middle, then size remains almost constant. फिर size बराबर constant रह जाता है. वो इसीलिए क्योंकि जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इंटरवीनिंग डी इलेक्ट्रॉन शील्ड द outer electrons from being attracted towards the nucleus, so the atomic radius remains nearly constant from the middle of the series. और towards the end ये atomic radius increase हो रहा है. जब हम जिंक की तरफ मूव करते हैं from nickel copper up to zinc, यहाँ तक मूव करते करते ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है. द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस occurs because जब हम यहाँ मूव करते हैं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2. अब जो अंदर वाला शेल है, ये बाहर का शेल है 4s2 शेल, जो इससे अंदर वाला शेल है इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ये 10 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मीन्स अब तीसरा इफेक्ट वजूद में आ गया. पहले कौन कौन सा इफेक्ट था, एक था न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा था शील्डिंग इफेक्ट. अब रिपल्शन वजूद में आ गई, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की टेंडेंसी अब बढ़ गई. इससे पहले भी रिपल्शन थी बट कंपैरेटिवली लेस थी. सो व्हाट हैपेंस व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली फिल्ड, जब डी सबशेल कंप्लीटली फिल अप होती है इट रिलैक्सेस, ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है. व्हेन इट रिलैक्सेस द एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड द रीजन फॉर दिस इज electron repulsion has come into picture. So reason for the decrease in the decrease in the atomic radius while moving from left to right in the periodic table in the d block is increase in the nuclear charge. But here sharp decreases are not observed. Sharp decrease नहीं होता है atomic size because of the shielding effect. Towards the end atomic size increase होता है because of the electron repulsion and because of the completely filled d configuration. जब भी completely filled configuration आ जाती है तो एटम वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है. अब हम डाउन द ग्रुप की बात करते हैं. When we move from top to bottom, डाउन द ग्रुप हम मूव जब करते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड है कि सेकेंडियम से जब हम यट्रियम पे आ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना चाहिए बिकॉज न्यू शेल ऐड हो रही है. पहले 3D सीरीज थी, उसके बाद 4D सीरीज शुरू हो रही है. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 to 4. न्यू शेल इज एडेड, एटॉमिक रेडियस मस्ट डिक्रीज. और सेम ट्रेंड ऑब्जर्व होता है व्हाइल मूविंग फ्रॉम सेकेंडियम टू यट्रियम. सेकेंडियम से यट्रियम जब हम मूव करते हैं इसका एटॉमिक रेडियस है 160, इसका एटॉमिक रेडियस है से फॉर एग्जांपल इट इज 148 पिकोमीटर. सो इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड, इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड. ये एटॉमिक रेडियस जो है इट इज गेटिंग इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज न्यू शेल इज बीइंग एडेड व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3D to 4D सीरीज. बट जब हम यट्रियम से मूव करते हैं अप टू द 5D सीरीज, जब हम 5D सीरीज को मूव करते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू द एटॉमिक रेडियस, द एटॉमिक रेडियस इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे 180 पिकोमीटर्स हैं, वहां यहाँ पे 187 पिकोमीटर्स हैं. दूसरे वाले एलिमेंट है, जब हम दूसरे वाले एलिमेंट जिरकोनियम और यहाँ पे हैफनियम की बात करते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस जो है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ऑलमोस्ट क्या, इट इज एग्जैक्टली कांस्टेंट, सेम एटॉमिक रेडियस है. और यहां से यहां तक जब हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है. रीजन फॉर दिस इज न्यू शेल इज बीइंग एडेड. यहां से यहां जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्यों कांस्टेंट रहता है, क्यों ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्यों ये कभी कभी इंक्रीज के बजाय डिक्रीज हो रहा है. द रीजन फॉर दिस इज इंटरवीनिंग डी सबशेल. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था दैट जब हम 4D सीरीज की बात करते हैं, 3D से 4D जब हम मूव करते हैं और 4D से जब हम 5D मूव करते हैं तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आता है लेंथनम. देन इसके बाद इसके और हैफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स हैं और वो 14 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इसी तरह से इसके नीचे और एक सीरीज आती है जहां पे 14 एलिमेंट्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट द एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स यहाँ पे बीच में आ जाते हैं. Here,
lanthanide and actinides, lanthanide यहाँ पे और यहाँ पे 6d सीरीज में actinides प्रेजेंट होते हैं. The presence of these 4f सबशेल, जो 4f सबशेल इसके बीच में आ जाती हैं, वही रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर स्मॉल डिक्रीज और एट टाइम्स इंक्रीज इन द एटॉमिक, फॉर स्मॉल डिक्रीज इंक्रीज और एट टाइम्स डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं. सो वी वर एक्सपेक्टिंग, पीरियोडिक टेबल पर हम अच्छे से इसकी वेरिएशन यहाँ स्टडी कर सकते हैं. वी वर एक्सपेक्टिंग कि स्कैंडियम से यट्रियम जब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए. नॉर्मल ट्रेंड इज फॉलोड, होता है इंक्रीज. बट जब हम यट्रियम से लेंथनम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाने के बजाय डिक्रीज हो रहा है, या ये कांस्टेंट रह रहा है. इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट और एट टाइम्स इट इज गेटिंग डिक्रीज्ड. जब हम लेंथनम से एक्टिनम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस नियरली कांस्टेंट रहता है. और रीजन इसके लिए क्या है, आपको रीजन क्या याद रखना है कि यहाँ पे बीच में आ जाते हैं 4f सबशेल, यहाँ पे बीच में आ जाते हैं 5f सबशेल. तो ये f सबशेल के बीच में आ जाने की वजह से means electrons are getting added, electrons are being added to the f subshell. वो पहले f subshell में चले जाते हैं और जितने जितने electrons ऐड होते हैं उतने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस भी ऐड होते हैं. एंड रिमेंबर these f electrons या f subshell, they are the poorest screeners of the nuclear charge. वो न्यूक्लियर चार्ज को, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से सबसे कम रोकते हैं. वो नहीं रोक पाते हैं न्यूक्लियस को, बिकॉज दे आर हाईली डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स. वो बड़े फैले हुए ऑर्बिटल्स होते हैं. जब वो बड़े फैले हुए ऑर्बिटल्स होते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा सकते हैं. दिस इज से फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, दिस इज द एफ सबशेल. ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक एफ सबशेल है, एफ सबशेल का एक ऑर्बिटल है. इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब इससे बाहर और एक शेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एस सबशेल और दिस इज आवर डी सबशेल. यहाँ से बाहर से एस और डी सबशेल प्रेजेंट है. अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इंटरवीन कर रहे हैं, बीच में आ जाते हैं, शील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए और इस वाले सबशेल को न्यूक्लियस के नजदीक नहीं आने देने चाहिए. बट व्हाट इज हैपनिंग, रिवर्स थिंग इज हैपनिंग. ये तो रोक रहे हैं बट इनके रोकने की टेंडेंसी बहुत कम है इस न्यूक्लियस को इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से. देयरफॉर जब ये बीच में आ जाते हैं ये एफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन दे कम इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, द शेल कंट्रैक्ट्स. एटम का साइज कम होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस को रोक नहीं पाते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से. सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेंथनम टू हैफनियम, जब हम लेंथनम से हैफनियम मूव कर रहे हैं तो लेंथनम का एटॉमिक साइज कितना है, 180 पिकोमीटर्स, और हैफनियम का एटॉमिक साइज है 146 पिकोमीटर्स. मींस व्हाट इज हैपनिंग, द एटॉमिक रेडियस इट मस्ट हैव डिक्रीज्ड शार्पली. ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए था. या हम ऐसे बात कर सकते हैं, जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस है 146 पिकोमीटर्स, हैफनियम का भी है 146 पिकोमीटर्स, नियोबियम का है से फॉर एग्जांपल 135 पिकोमीटर. टेंटेलम का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज होना चाहिए बट इसका डिक्रीज हो रहा है, इसका 130 पिकोमीटर्स है. शॉर्ट में इसका डिक्रीज हो रहा है. तो ये डिक्रीज जो हो रहा है यहाँ से यहाँ जब हम मूव करते हैं, या कांस्टेंट जो रह रहा है एटॉमिक साइज, इट इज ड्यू टू इंटरवेनिंग डी सबशेल. और वो डी सबशेल जो है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पूल. आउटर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक आते हैं, शेल कंट्रैक्ट होती है और एटम का रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है. दिस इफेक्ट वी कॉल एज लेंथनाइड कंट्रैक्शन. इसको हम बोलते हैं लेंथनाइड कंट्रैक्शन. इसी तरह से एक्टिनाइड्स में भी ये कंट्रैक्शन ऑब्जर्व की जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड कंट्रैक्शन. ये लेंथनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से 4f के बीच में आ जाने की वजह से शेल जो है इंक्रीज होने के बजाय कंट्रैक्ट हो रही है. इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लेंथनाइड कंट्रैक्शन. और इस लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से जो एक्सपेक्टेड वेरिएशन है डाउन द ग्रुप, दैट इज एटॉमिक रेडियस मस्ट इंक्रीज, इट इज ऑब्जर्व्ड फॉर फर्स्ट टू सीरीज बट नॉट फॉर रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक. रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक के लिए ऑब्जर्व नहीं की जाती है और इसको हम बोलते हैं लेंथनाइड कंट्रैक्शन. सो इन शॉर्ट एटॉमिक रेडियस में आपको क्या याद रखना है, atomic radius while moving from left to right in the d block, the atomic radius is expected to decrease because of the increased nuclear charge and electrons entering the same subshell. This trend is observed up to the middle of the series, but afterwards the atomic radius remains nearly constant and towards the end the atomic radius goes on increasing. It slightly increases.
The reason for this is when we move from left to right in the d block, it is the penultimate shell which is getting filled up. And while moving from left to right, for example in the 3D series, while moving from scandium to chromium, the atomic radius decreases because nuclear charge increases. But simultaneously electrons are being added to the d subshell, so an opposite effect comes into picture that we call as shielding effect or screening effect, and that shielding effect or screening effect becomes much pronounced, highly effective from the middle of the series. Therefore, what happens from the middle of the series, the atomic radius nearly remains same. It is expected to decrease, but it doesn't decrease. And towards the end, the atomic radius shows a slight increase because of the completely filled configuration or because of the electron-electron repulsion. Down the group, the atomic radius is expected to increase. This happens down the group for first two series, but from 4D to 5D or 5D to 6D series, the increase is not much pronounced, or at times the atomic radius remains constant, or at times it may even decrease. And the reason for this is intervening F electrons, which are poor screeners of the nuclear charge, F subshells, which are poor screeners of the nuclear charge, and that effect we call as lengthened contraction, due to which the expected increase in the size is not observed from 4D to 5D or 5D to 6D. Then इसी तरह से बिल्कुल यही वाला ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है जब हम आयोन्स की बात करते हैं. अगर एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो बिल्कुल उस पॉजिटिव चार्ज में, फॉर एग्जांपल अगर हम स्कैंडियम की बात करेंगे, स्कैंडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Sc+1 बन जाएगा. टाइटेनियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Ti+1 बन जाएगा. इसी तरह से वेनेडियम V+1 बन जाएगा, क्रोमियम +1 बन जाएगा, मैग्नीज +1 बन जाएगा. हम ये दिखा रहे हैं कि अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन पे एक एक चार्ज आएगी, मींस ये आयोन्स बनेंगे. इन आयोन्स में भी बिल्कुल यही ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, दैट इज एटॉमिक रेडियस decreases, slightly decreases up to middle, then it remains constant, and towards the end it shows a slight increase. Number first thing. Number second thing, आयोन्स में अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे मैग्नीज की या स्कैंडियम की ही किसी भी एलिमेंट की हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और टाइटेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो उस वजह से क्या होगा, इनका एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन क्या होगी. वी से एटॉमिक रेडियस विल बी लाइक दिस. Ti+3 का एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगा, इससे ज्यादा होगा Ti+2 का, और इससे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा Ti+1 का. रीजन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ पे जितना जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ जाता है उतना इफेक्टिवली न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है. मींस यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 22 इज एटॉमिक नंबर. इस एटम ने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मींस इसके पास है 21 प्रोटॉन्स, 22 प्रोटॉन्स एंड 21 इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास है 22 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. इसके पास है 22 प्रोटॉन्स और 19 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. यहाँ पे 22 प्रोटॉन 22 प्रोटॉन्स पुल कर रहे हैं 21 इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे यही 22 प्रोटॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे यही 22 प्रोटॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं. देयरफॉर यहाँ पे पुल करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत कम है. यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिफरेंस सिर्फ 1 है. देयरफॉर यहाँ का पुल कंपैरेटिवली कम होगा और यहाँ का पुल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. देयरफॉर इन वाले आयोन्स में +3 जितना मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयोन पर बढ़ जाएगा उतना वो इसका आयोन जो है वो कंट्रैक्ट होगा, उसका जो है आयोनिक रेडियस उतना कम होगा. लाइकवाइज अगर हम एटम और आयोन को कंपेयर करेंगे तो एटम बड़ा होगा, आयोन छोटा होगा, क्योंकि आयोन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं, सो पुल इंक्रीजेस, एटम कंट्रैक्ट्स. और जो नॉर्मल एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, देयरफॉर इट इज कंपैरेटिवली बिगर इन साइज देन द आयोन. So variation in the atomic radius आपने understand की होगी. What happens to the atomic radius while moving from left to right? मैंने इस पर इसीलिए इतना स्ट्रेस दिया क्योंकि atomic radius जब आप understand होगा तो बाकी properties को आप अच्छे से आसानी से जो है explain कर पाएंगे.